हेलो स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा से बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल है आपका इस सेशन में जहां पर आप करने जा रहे हैं ग्रामेटिकल मास्टरी ऑन टेंसेस। टेंसेस की मास्टरी के लिए एक बार फिर उस चीज़ को आप रिवाइज कर लें कुछ सेकंड्स में कि टेंसेस आर नॉट ओनली देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू फॉर्म राइट ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, but first of all, basically, fundamentally, they show the time of the sentence. And after this, you are to go for the categorization, particular nomenclature of the tense, so that the other traits of the sentence can be shown in the sentence as accurately as are needed. Whether again you are going to take any academic exam or competitive exam. So first of all, tenses means those particular weapons of English grammar which show the time of any sentence. And basically, there are three branches of tenses. So far as time is concerned, present, past, or future, as is known, it is presumed, it is admitted that it is known to everyone. अब आगे की कुछ मिस्टेक्स को साथ साथ में डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में इतना कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज यू हैव लर्न फ्रॉम ए टीचर। सी द आयरनी, आपने सीखा, गलती हो गई। कुछ जगह बच्चे सेंटेंसेस की हिंदी करते हैं कि मैंने कल लेटर पोस्ट कर दिया है। अब कल लेटर पोस्ट कर दिया है अपने आप में सेंटेंस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा। कल भी आ गया, है भी आ गया। एग्जाम्स में ये सेंटेंस कई बार आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे भी आपको मिलेगा। तो आप देखिए, सेंटेंस अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा हिंदी का टच आ गया या ट्रांसलेशन का टच आ गया, आपने रॉन्ग ऑप्शन फिल कर दिया। आई हैव पोस्टेड द लेटर yesterday, स्टाइलिशली आई पोस्टेड द लेटर yesterday, एंड यू हैव नॉट committed the mistake but the blunder. When yesterday is there, this is the sort of help which is being presented at end of God, which is the help of the examiner to you in the examination. When yesterday is there, one action is there. These two things are the quite evident examples or help giving points which show that the sentence belongs to only simple past in the present scenario of the nomenclature. Books में नाम change हो गए, doesn't matter. But when one action is there, whether that took place yesterday or 50 years ago, that sentence belongs to only past indefinite. So I posted the letter yesterday. अब इसी को आप लेके चले टेंसेस पे मास्टरी करने से पहले, क्योंकि इसी सेशन में हमने टेंसेस की मास्टरी करनी ही है। अगर हम वॉइस में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक तो ये एडवर्ब यस्टरडे हेल्प तो कर रहा है। ऑन द अदर साइड, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो वॉइस का, तो आपको कई बार एग्जाम कनेक्टिंग बॉडी की ऑप्शन थोड़ी ऐसी मिल जाती है, टाइपो एरर मिल जाती है, लेकिन आपने ध्यान रखना है एडवर्ब इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। द सेंटेंस इज आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे। हियर what was done yesterday by you, this is being asked in passive voice. In the session of voice, you will come to know the reason of converting, changing a sentence of active to passive voice, because in your offices in further life you will use a passive voice sentence not as the alternative of active voice, because that particular noting in the file requires passive voice sentence. You will note only that, because passive voice is constructed, passive voice is formed when the object becomes important. And if we again see the other side of the picture, passive voice is created when the subject is unimportant or sometimes unknown. Then you create and form the sentence, write the sentence only in passive voice form. So first of all,
आई पोस्टेड द लेटर yesterday, एक ऑप्शन आपको मिलेगी द लेटर was posted by me yesterday, technically wrong. Second option, the letter had been posted by me yesterday, again wrong from 2 points. Then I was posting the letter yesterday. Third, the letter was posted yesterday by me. अब आप देखेंगे नंबर वाइज फोर्थ इसलिए रखा है क्योंकि ये बताना जरूरी है कि ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, सी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है। ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आपको एडवर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम छोड़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, या एंड में लगा रहे हैं। फिर टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज कर रहे हैं। उसके बाद में एक में नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया। इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट, द वॉइस विल आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड in the past indefinite or simple past. Simply you will have to learn it. So tenses के significance को री-अंडरस्टैंड करते हुए, री-एडमिट करते हुए हमने टेंसेस पे मास्टरी करनी है। आप देखेंगे टेंसेस को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांट दिए। द डाइकोटमी ऑफ टेंसेस इज नॉन एक्शन शोइंग टेंसेस और एक्शन शोइंग, और इस कोड को माइंड में बिठा लेना है। भले ही आपने आज रिफ्रेश किया अपनी नॉलेज को टेंसेस के हिसाब से, लेट नहीं हुए। आप में से कोई स्कूल गोइंग किड, उसके लिए भी ये सेशन बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि टेंसेस की मास्टरी अगर उस स्टेज पे हो जाए तो आगे जाकर तो फिर इंग्लिश में फियर ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको और सब्जेक्ट्स में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बार गेन कर लिया तो क्रिकेट खेलते समय भी परफॉर्मेंस अच्छी है, फुटबॉल खेलते समय भी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि कई चीज़ें आपको इनहेरेंटली मिल जाती हैं। तो पहली चीज़ ये टेंसेस में माइंड में रखते हुए कि टाइम्स ऑफ सेंटेंसेस, नॉन एक्शन शोइंग टेंसेस आर दोज विच सिंपली शो द, पहली चीज तो यही कि नॉन एक्शन है तो एक्शन नहीं है उसमें, और सेंटेंसेस बहुत सारे बनते हैं। आप फिर देखेंगे अगली स्लाइड्स में कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल के हिसाब से पूछा गया है, एरर के हिसाब से पूछा गया है, जीके में पूछा गया है कि एट विच प्लेस डज इंडिया स्टैंड सो फार एज इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज कंसर्न्ड। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। डिग्री के हिसाब से आप देखें सुपरलेटिव डिग्री इसमें यूज हो रही है, आप उसके पहले दा लगा रहे हैं। तो आप सेंटेंस को समझिए पहले टेंस के हिसाब से। एफिलिएटेड बेनिफिट्स खुद चल के आपके पास आएंगे, कुछ चीज़ों को खुद होने दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आना। और कईयों को अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके चाहने वालों को अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, तो उनके लिए अपने लिए मास्टरी ही करके चलनी है, उससे कम नहीं ज़्यादा कुछ आपसे एग्जामिनर मांग नहीं रहा। तो नॉन एक्शन शोइंग सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दोज टेंसेस विच फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट शो द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट वहां पर है, सब्जेक्ट या तो शो कर रहा है पोजीशन नॉन एक्शन में, पहले इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए। आगे चलते हैं हम। नॉन एक्शन वाले वो होंगे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या है, सिंपल टेंसेस हम उनको कहेंगे। पहली चीज जिसमें या तो पोजीशन आप शो कर रहे हैं सब्जेक्ट की, या फिर स्टेट बता रहे हैं कोई क्या है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन आवर फैमिली, कोई पर्सन आपकी बहुत हेल्प करता है हर हिसाब से। वेन एवर यू नीड दैट पर्सन दैट इज देयर विद यू टू हेल्प यू, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पर्सन्स, वन ऑफ दी आगे प्लूरल, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, या कई जगह पर मेन वर्ब है क्योंकि पोजीशन शो कर रहा है सिंगुलर। कुछ चीजें एग्जाम के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओह गलती होने जा रही थी। शुरू शुरू में ऐसा भी लगेगा, उसके बाद में गलती खुद डरेगी कि मैं क्यों हो रही थी। तो पहली चीज, मिस्टेक्स से डरना नहीं है, डराना भी नहीं है, मिस्टेक होगी नहीं क्योंकि राइट ऑप्शन भी वहां पर है, चाहे 4 में से 1 है। 3 रॉन्ग ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट करके चलेंगे। एग्जामिनेशन को भी माइंड में रखना है, जिंदगी भी एग्जाम ही है, हर पल जीवन का एक चुनौती भी है, एग्जाम भी है। तो नॉन एक्शन में, सिंपल टेंसेस में जहां पर आप पोजीशन या स्टेट शो कर रहे हैं, टू बी एज नॉन फाइनाइट इज देयर इन द प्रेजेंट टेंस in 3 arms is MR. First of all, whenever any student is asked what is the status of is MR, पहली चीज तो confusion है कि वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है। फिर कौन सा वर्ब है, क्योंकि फंडामेंटली जब हम सीखेंगे वर्ब क्या है तो शायद कुछ मिनटों में आपको नॉलेज रिफ्रेश हो जाए, कुछ डिफेक्ट्स अपने आप रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब इज देयर टू हेल्प द मेन वर्ब। In the sentences which belong to simple tenses, there is MR. Any of these is itself the main verb. क्योंकि किसी हेल्प ही नहीं कर रहा, उसके बिना और कोई वर्ब ही नहीं है। एंड टू री अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इज द वेरी सोल ऑफ ए सेंटेंस। और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बिना एक सेंटेंस बन सकता है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस सोचा भी नहीं जा सकता, बनाना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो पहली चीज, सिंपल टेंसेस प्रेजेंट वाले में जहां पोजीशन और स्टेट बताई जा रही सब्जेक्ट की, फॉर इंस्टेंस एट प्रेजेंट इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन सो मेनी थिंग्स। अभी अभी इंडिया विश्व विजेता बना है T20 ICC वर्ल्ड कप में। सबके लिए जोश से बड़ा माहौल है, हम कह सकते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। और कई कंटेक्स्ट में भी हम देखेंगे। और ये सेंटेंस जब आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि मनोज सर के अगले सेशन को तो छोड़ना ही नहीं। और छोड़ना इसलिए नहीं है कि ये चीजें सिर्फ आपके लिए, ताकि ग्रामर की मास्टरी सही टाइम पे अगर हो जाए, तो ना तो ये बहुत जल्दी है ना लेट है, कि मास्टरी करना आपके लिए जरूरी है। इट इज इनेविटेबल फॉर यू। तो ये लैंग्वेज आपको वो सक्सेस दिलाएगी जो आप सोचते हैं, शायद उससे आगे भी आपको मिले, कॉन्फिडेंस मिले, और सब्जेक्ट्स में हेल्प मिले। देख के चलिएगा, कुछ चीजें कंप्रोमाइज नहीं करनी तो नहीं करनी। तो सिंपल प्रेजेंट जब सिर्फ पोजीशन यानी कि स्टेट बता रहे हैं सब्जेक्ट की, माइंड इट, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा यहाँ पर। नॉन एक्शन वाले में हम पोजीशन बता रहे हैं, प्रेजेंट में इज MR। आपको PDF में मिलेगी इसकी सेंटेंसेस की। इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस इसलिए होंगे कि उनको पढ़ने में सिर्फ ये नहीं कि आपको मजा आएगा, उसमें कुछ और पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, डिग्रीज के, जो कुछ टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते इतनी दूर ले जाते हैं आपको वंदे भारत में बिठा के कि जर्नी में मजा तो आ रहा है, लेकिन कितने स्टेशन निकल गए और क्यों इतनी लंबी जर्नी कराई जा रही थी ये आपको पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब आपका स्टेशन भी पीछे रह गया। आपने उस टॉपिक पे कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स, कपल ऑफ मिनट्स खर्च करने से आपने लगा दिए घंटों, महीनों और कई बार सालों। तो इतने ईयर्स, इतने दिन, इतने महीने वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज टू बी वेस्टेड। नहीं तो खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई। बड़ी सारी चीजें आपको अपने आप समझ आती हैं, उनके ऊपर काम करना इसलिए जरूरी है वंस एंड फॉर ऑल, कि आपको आगे भी उस पर्टिकुलर नॉलेज को नेक्स्ट स्टेप में लेके चलना है, ताकि आपको कई बार रिपीट करना पड़ेगा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिले। रूल ऑफ एलिमिनेशन आपकी हेल्प करेगा वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट
any subject in the exam. With the help of this subject, grammatical accuracy will provide you so many affiliated advantages. आप देखते चलिएगा मेरेकुलस कई बार आप चेंजेस महसूस करेंगे यहाँ पर। वो जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जाम देते समय फियर अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी आ गया तो नुकसान बड़ा सारा कर जाएगा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बहुत पहले कह दिया था, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर फ्रॉम इज फियर इटसेल्फ। और एग्जाम देते समय डर ना लगे ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। जीसस क्राइस्ट गॉड उन्होंने तक कह दिया, ओ गॉड नेवर पुट मी टू एग्जामिनेशन, परीक्षा मत लेना, बाकी सब चल जाएगा। तो थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन जब सब्जेक्ट आपका इतना बढ़िया हो गया, आपको पता चल गया कि आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी कर ली है, ग्रामर के ऊपर मास्टरी कर ली है, तो चांस नहीं है, क्योंकि राइट आंसर भी आपके सामने है ना। 4 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट भी हो रही हैं उसी नॉलेज से, राइट ऑप्शन भी आपके सामने आ रही है। बस फिर एक रिक्वेस्ट कि जल्दी नहीं करनी। कई लोग क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ते हैं, ऑप्शन पे भागते हैं, गलती नहीं होनी होती हो जाती है। इन चीज़ों को लर्न करना है पहले इस एंगल से कि हमारी टेंसेस में मास्टरी हो गई। फिर आगे के सेशन में जब आप देखते हैं कि आप वॉइस के ऊपर मास्टरी कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे माइंड में रख लिए, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मटेरियल लेटेस्ट एग्जाम्स का भी आपको ऐसा मिलेगा, एकेडमिक एग्जाम्स का मिलेगा, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो आपने सीख भी ली पहले, लेकिन वो माइंड में कहीं ना कहीं साइड ट्रैक में चली गई। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा उनको ढूंढने का, आपके सामने उस क्वेश्चन में सामने पॉपअप होके आ जाए कि ये जी इस क्वेश्चन में इसकी बात हो रही हैगी। अगर आपको वो पता चल गया तब आपको पता चलेगा कि आंसर सही क्यों है, जब खुद मालूम है कि आप ठीक हैं और इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी वेट कर रहा है उसके ऊपर आप फटाफट पहुंच जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट पोजीशन और स्टेट को शो करने के लिए is, am, are, any of these 3 main verbs, principal verbs is to be used. He is one of those friends of mine who always help me. बात हो रही है एक की। यहाँ पर हमने एक्शन वाले को बेसिकली ले लिया क्योंकि हमने कहना है इस समय मेरा वो दोस्त है। आगे आप बात कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट एक्शन वाला भी आ गया, लेकिन जो पॉइंट आपने समझना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस, सेंटेंस थोड़े बड़े एग्जाम वाले सेंटेंसेस हम देखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें एग्जामिनर जानबूझ के टेंसेस वाले में टेंसेस की एरर ना देख को रिलेटिव्स की देता। तो भाई सेंटेंस नो डाउट प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, बात कुछ और होती है, समझ भी आ जाती है लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। नॉट इवन अ सेकेंड इज टू बी वेस्टेड, टाइम लगेगा हर क्वेश्चन के लिए, वेस्ट नहीं करना। तो सिंपल प्रेजेंट प्रेज्यूमेबली आपको ये माना जाता है कि समझ आ गई कि आपको इज एम आर यूज करना है पोजीशन के लिए सिंपल प्रेजेंट में। पास्ट में वही टू बी की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वाज और वर। अब आ गया वर के भी कई सेंटेंसेस एग्जाम में देख चुके हैं, वो देखेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन में 2025 के 2026 के, और कुछ क्वेश्चन ऐसे अभी जब नेक्स्ट टेंस डिस्कस करेंगे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय एसएससी, जो उसी पर्टिकुलर ईयर का था। लोगों ने जैसे तैसे उसको अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सो दे कमिटेड द मिस्टेक। उसको एग्जामिनेशन लेवल के पॉइंट पे हम मिस्टेक्स कह ही नहीं सकते, दे आर ब्लंडर्स। ब्लंडर्स तो क्राइम्स हैं, एकेडमिक क्राइम्स, हमें नहीं करने, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। तो जी सिंपल प्रेजेंट इज एम आर पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है किसकी, सब्जेक्ट की। यहाँ सब्जेक्ट वो जिसके हम बात कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहा। सिंपल पास्ट में सिर्फ अभी अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें क्योंकि पीडीएफ में आपको सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग मिलेंगे, यूजफुल भी मिलेंगे। सारा कुछ सुनते रहेंगे तो कई चीज़ें माइंड के साइड ट्रैक में खुद ही चली जाती हैं। आपसे डर के या जैसे भी है, हमने डराना नहीं है, डरना नहीं। तो सिंपल पास्ट में वाज वर,
सिंपल फ्यूचर में विल और शैल, इसमें भी इंटरेस्टिंग चेंज जो आया है। पहले स्ट्रिक्टली फर्स्ट पर्सन के साथ, ग्रामेटिकली इन पासिंग आई मस्ट टेल यू विद इन 15 seconds that there are three types of grammatical persons. वो वर्ड्स जो नाउन के यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग, सिंगल है या इससे ज्यादा है, यू, फर्स्ट पर्सन आई हुई, थर्ड पर्सन अबाउट विच और अबाउट हुम वी टॉक, ही शी इट दे। कई बार पहले टीचर्स पूछा करते थे जी प्रोनाउंस क्या होते हैं, ही शी इट दे प्रोनाउन, टॉपिक खत्म हो जाता था। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स को भी लाइटली थोड़ी ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है लेबर ही ना करनी पड़े। तो जब आप फ्यूचर टेंस को यूज कर रहे हैं, आप आई के साथ वही क्या फर्स्ट पर्सन विल लगा सकते हैं। शेल की कुछ और कंडीशन, शेल जब भी यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा अगर ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का। कोई भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस ऐसा नहीं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, आइदर विल और शेल, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर विल और शेल में चेंज होता है। तब हम आई हुई का विल, नहीं तो आज विल कन्वर्सेशनल भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे हैं। ऑप्शन भी आपकी हेल्प करेगी, बड़ी सारी चीजें जो अब पुरानी कहावत भले ही है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ग्रामर में भी सही है, लाइफ में भी सही है। जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके चलते हैं तो आपको लगता है कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो आपको सिर्फ बताया है कुछ सेकंड्स में, वो गलत तो था ही नहीं। इम्प्लीमेंट करते समय आप कुछ गड़बड़ कर जाए तो फिर कसूर आप ही का होगा। तो सिंपल फ्यूचर में विल शैल हेल्पिंग अप एंड बी बेसिक फॉर्म नॉन फाइनाइट, बी टू शो द पोजीशन और स्टेट। द सेकंड part of simple tenses where action is not there, you are going to show the possession. अब इन sentences को आप देखिएगा, India is the 7th largest country of the world. There were over 560 princely states. जीके में आपको अगर ये 1 मार्क एक्स्ट्रा दिला रहा है तो कोई नुकसान वाली बात तो है ही नहीं ना। तो आपको ये भी देखना है कि पेपर में ये फैक्ट इसके करके सरदार पटेल भी आपको याद आ जाएंगे जिनका स्टैचू इंडिया ने बनाया, हाईएस्ट स्टैचू, टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। फिर आवर कंट्री विल बी द वर्ल्ड लीडर इन एआई, अभी इंडिया ने एआई समिट को होस्ट किया, सिंपल पास्ट में भी हम देखेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं। ही इज टॉलर देन में इंट्रोडक्टरी सेशन वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आई क्यों, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स का कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल टेंसेस की ही जिसमें एक्शन नहीं है, पहली चीज कुछ सेकंड्स खर्च करके आपको कुछ ऐसी मिस्टेक से छुटकारा मिल जाएगा जो आपके माइंड में आएंगी नहीं, होंगी भी नहीं। तो पोजेशन की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात हो रही है, बिलोंगिंगनेस की बात हो रही है। आई हैव वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बड़ी सारी बुक्स हैं, आई हैव रेड टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। किसी में कुछ मिस है, किसी में कुछ मिस है। पहले फ्यूचर टेंस ही नहीं दिखाते थे बुक्स में, भाई फ्यूचर की बात तो करेंगे ना, टेंस मीन्स टाइम, तो कई ऐसे फ्लॉज भी रह गए, कोई बात नहीं। तो अब आप कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते तो नहीं छोड़ सकते, ये अपने आप कमिटमेंट आपकी हो जाएगी। और जब आपकी कमिटमेंट हो जाती है तो फिर आप अपनी भी नहीं सुनोगे, किसी की भी नहीं सुनोगे। सिंपल फ्यूचर नॉन एक्शन वाले, पोजेशन वाले, हैज हैव यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। फ्यूचर में आप जाएंगे विल शैल, विल ओब्लिक शैल प्लस है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। 3 सेंटेंसेस आपके लिए। आई हैव ए वेरी नाइस डिक्शनरी, दे हैड ए वेरी बिग हाउस इन द विलेज लास्ट ईयर। अब वो शहर में आ गए तो एक फ्लोर है उनके पास, सिटी लाइफ। I will have a good command over all the grammatical points in the time to come. Simple tenses, I hope they are clear in your mind. You will get 2 PDFs.
इसमें आप देखेंगे कि और जो बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। पहला फोकस ये हो जाएगा और यकीन आ जाएगा, बिलीफ आपके माइंड में अपने आप घर कर लेगा परमानेंटली कि आपने गलती नहीं करनी। गलती कब बड़ी हो जाए, कब ब्लंडर हो जाए, उसको वाइप आउट करना मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। सिंपल टेंसेस जो एक्शन वाले। अब बेसिक कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपने देख लिया कि टू कैटेगरीज हैं टेंसेस की। एक वो जिसमें एक्शन शो हो रहा है, एक जो नॉन है। नॉन एक्शन में हमने देख ली बेसिकली, एक तो पोजीशन और स्टेट शो हो रही है, एक पोजेशन शो हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। डिग्रीज में आएगा, कई जगह आपको मिलेगा। बात टेंसेस की भी नहीं हो रही। टेंसेस वो पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर का विच प्लेज वेरी पिवटल रोल, एक तरीके से धुरी है, क्योंकि इसी की हेल्प से कई और चीजें भी आप सीखेंगे। इवन जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इस एक्शन को इस टेंस में कर रहा है, उसका हेल्पिंग अब वो है, वहां पर ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाती है। नीचे जो आपको ऑप्शन मिली है उसमें पहला पार्ट ठीक है, पहले पार्ट वाली दो ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, उन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आप उसको सॉल्व करते हो। थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये टॉपिक जब हम सिंगली यूज करेंगे कुछ सेकंड्स फालतू लगेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा सेकंड्स आपकी मिस्टेक्स बचा देंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो बेस बन रहा है ये कब मास्टरी में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद ये नहीं पता चले टाइम लगा है, ये जरूर यकीन हो जाएगा कि अब इसके बाद आपको टेंसेस, वॉइस, नरेशन, नाउन पर नाउन, केसेस ऑफ नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, देयर डिग्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, देन वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्यों काइंड ऑफ वर्ब भी हेल्प करती है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक्टिव का पैसिव में चेंज होगा, नहीं है तो 1% नहीं होगा। उसके और काइंड्स भी आपको मिल जाएंगे। पहली चीज ये है कि टेंसेस पे हमारी मास्टरी हो रही है कुछ सेशंस में। एक्शन शोइंग प्रेजेंट के अगर हम बात करते हैं, पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट किसी भी नाम से कह दें, क्योंकि कई जगह पर आप चाहे कुछ एग्जाम्स में काइंड ऑफ सेंटेंस पूछा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें देखना है कि सिंपल टेंसेस वो हैं जिसमें पहला अगर हम देखें प्रेजेंट डेफिनेट यूजुअल एक्शन शो किया जाता है। इस पॉइंट को अगर माइंड में रख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्शन जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, यूजुअल एक्शन, आप मान लो हर साल हिल स्टेशन पे जाते हैं, डेली तो नहीं जा सकते, तो हर साल आप जा रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी हर साल की, वी विजिट एनी हिल स्टेशन एवरी ईयर, ही विजिट्स एनी स्टेशन एवरी ईयर। तो चाहे ईयर एंड पे जा रहे हैं लेकिन रेगुलर नेचर, यूजुअल एक्शन, कोई काम डेली हो रहा है, कोई वीकली हो रहा है, कोई मंथली हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी देंगे, यूजुअल एक्शन को माइंड में रखेंगे, तो दैट सेंटेंस विल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट में हम देखेंगे एक एक्शन है, 8 तारीख को हुआ, आज के हिसाब से देखें, आज आप इस सेशन को भले बाद में देखेंगे, तो अगर आज 9 मार्च है, 8 को इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ICC T20 वर्ल्ड कप जीता, विश्व विजेता बना, तो इंडिया वन द 10th ICC क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप यस्टरडे लगा दिया या 8th डेट दे दी, नहीं तो डेट नहीं दी तो सेम सेंटेंस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट। इंडिया हैज वन ICC T20 वर्ल्ड कप ऑफ दिस ईयर, या इंडिया वन, या इंडिया हैज वन ICC T20 वर्ल्ड कप 3 टाइम्स। तो आप देखिए जब टेंसेस में इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर ट्रेड को सीख के चलते हैं तो मिस्टेक की गुंजाइश जीरो हो जाती है। सिंपल पास्ट, वन एक्शन, आई सॉ ए मूवी डेली, एक हैबिचुअल एक्शन भी है जिसको हम आई यूज टू से भी शो करते हैं। हम इसको शो करते हैं सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में भी। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हेल्प करता है अगर हम सिर्फ एक अलग यूसेज देखें, क्योंकि टेंसेस को लर्न करने के बाद
यूसेजेस ऑफ टेंसेस जरूरी बन जाए, कुछ मिनटों की दास्तां होगी कि अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, दोनों में सेम टेंस आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, ये अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुछ सेकंड में ही सीख जाएंगे आप, लेकिन पहले टेंसेस के ऊपर मास्टरी जरूरी है। सिंपल फ्यूचर, एक सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई विल हैव ए पेट इन माई नेक्स्ट हाउस, ये आपका सिंपल फ्यूचर का हो गया जो पोजेशन वाला। या फिर आप यहाँ पर कहें आई विल गो देयर टुमारो, आई विल गो देयर टुमारो। तो जहाँ तक सिंपल टेंसेस की बात है, इंडेफिनेट नाम से इसको समझ लें। एक्शन वाले में हमने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, क्योंकि जब आप इसको आगे लेके चलेंगे कहीं पर और एकेडमिकली देखते हैं, जैसे देखते हैं, तो आपको सेंटेंस की हेल्प, मैक्सिमम सेंटेंस की हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को उसमें ढूंढ रहे हैं, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, आप उस ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने राइट ऑप्शन पॉपअप हो गया। नहीं तो बाकी कई बार ऐसे होता है, कुछ बच्चों चार ऑप्शन में ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं देखा, ये नहीं देखा कि एग्जामिनर क्या कहना चाहता, तो ऑप्शंस लगेंगी। तो पीडीएफ इनकी अलग से अटेम्प्ट करिएगा सिंपल की। कंटिन्यूस भी आज देखते हैं। कंटिन्यूस में देखिएगा कि जैसा नाम से जाहिर है, हालांकि शेक्सपियर के हिसाब से देर इज नथिंग इन द नेम, ग्रामेटिकली देर इज ए लॉट इन द नेम ग्रामेटिकली। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस आप बना रहे हैं, सिंपल फ्यूचर में आप देख रहे हैं कंटिन्यूस वाले में एक्शन कंटिन्यूस है। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इस समय आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग योर क्लास राइट नाउ। अब ये कैसे यार भाई, ये तो सेंटेंस कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्यों सर से हम सीख रहे हैं? ये इसलिए सीख रहे हैं कि जब आप वॉइस में इस सेंटेंस को देखेंगे एकेडमिक एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ दिक्कत होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा हो दिक्कत होगी। तो आपने देखना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पैसिव वॉइस में थोड़ा हिंट अभी दे के चलेंगे कि आप हेल्पिंग हो तो सेम यूज़ कर रहे हो, प्लस एडिड हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस का, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस का। फ्यूचर कंटिन्यूस को हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ तो देख ही लेंगे, वॉइस में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये चीज़ भी जब ऐसे माइंड में रह जाती है आपके, अब देखो एग्जामिनर कई बार कितने स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है। ये भी हर सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें अलग से, कुछ पॉइंट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, कुछ अलग से आपको वीडियोस छोटी छोटी मिल जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस में किस टेंस को आप कन्वर्ट करोगे। अगर ये माइंड में क्लियर है तो एग्जाम का वो, क्योंकि 2 साल पहले ही हो सकता है इस साल फिर आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन आया एग्जाम में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस दे दिया, ए बी सी 3 ऑप्शन बना दी फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन तो पैसिव वॉइस की ही बनाएगा, टेंस भी चेंज कर रहा है। डी में लिखे नन ऑफ दिस कि इन 3 में इसका एक्टिव का पैसिव कन्वर्जन वाला कोई सेंटेंस नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में टेक्निकली कन्वर्जन ही नहीं है, बिकॉज दैट विल नॉट बी एबल टू, दैट सेंटेंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द मीनिंग। तो ग्रामेरियंस ने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर वॉइस पे भी आपको 10% ऑफ द पेपर मिल रहा है और आपको अकेडमिकली भी इसकी हेल्प मिल रही है, तो इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग ही बना के चलना है। वहाँ तो ऑप्शन भी मिल रही है आपको एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप देखिएगा कि बीइंग, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट कंटिन्यूस का है, बीइंग कंबाइंड हेल्पिंग अब मिलेगा। दिस टॉपिक इज बीइंग टॉट बाय मी टुडे, या दिस टॉपिक इज बीइंग टॉट टुडे बाय मी। सेकंड इज ग्रामेटिकली बेटर। कई बार एक टेक्निकली रॉन्ग ऑप्शन भी आपको पेपर में अटेम्प्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो कंटिन्यूस टेंसेस में एक्शन कंटिन्यूस का देखें, प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है हेल्पिंग वर्ब ये बताने की कि वो प्रिंसिपल वर्ब का एक्शन, चाहे वो टीचिंग का है या लर्निंग का है या स्टडिंग का है, वो प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में वो एक्शन चल रहा था, तो मैं जी उस समय टीवी देख रहा था जब उसका फोन आया, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी।
फॉर टीवी वी यूज वॉच। तो ये भी छोटे छोटे कुछ एफिलिएटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। काफ़ी चीज़ें कई बार ऐसी क्लियर हो जाती हैं कि अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस से भी बचना है कि क्लास के बाद कुछ तोड़ फोड़ दो, वो भी नहीं होना चाहिए। ईजिली चीज़ों को लर्न करना है, रिवाइज जो करना है। बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन इम्पॉसिबल नहीं तो डिफिकल्ट तो है। फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई टाइम ऐसा शो करें जो एक्शन हो रहा होगा, भी मैं तो उस समय पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग एट दैट टाइम। विल बी शैल बी कंबाइंड हेल्पिंग अप। और आपको मालूम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं, V1 शॉर्ट में कहते हैं, प्लस ING। तो ING फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा, सेकंड थर्ड के साथ नहीं आ सकता। कुछ चीजें बुकिश वे में थोड़ा रिवीजन ही करना है आपने, भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। और द पर्पज ऑफ दीज सेशंस इज नॉट टू कमिट ए मिस्टेक, सो दैट द मिस्टेक्स मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ब्लंडर्स। तो कंटिन्यूस वाले फ्यूचर सेंटेंस में विल बी शैल बी, हम वहां पर देखें कहीं पर अगर थोड़ा डाउट हो रहा है आई के साथ शैल लगाना है, वो आप यूसेज ऑफ टेंसेस वाले सेशन में सीखेंगे। अभी आप देख रहे हैं एग्जाम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंस के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से जो आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे आपको PDF मिलेगी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे भी। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि जी हमने WH फैमिली से ही बनाना है। द पर्टिकुलर हेल्पिंग of that particular tense will also help you to create the sentence which falls in the category of interrogative sentences. Are you going there today? Present continuous है। Why are you going there today? Technically present continuous और interrogative sentence है। तो कुछ चीज क्रैम नहीं करनी, ग्रामर तो क्रैम नहीं करनी। अपने आप आपके माइंड में परमानेंटली कोई टेक्निकल पॉइंट राइट लॉजिक से बैठ जाए तो उसको मना भी नहीं करना कि ना ना ना, आने देना दिमाग में, उसको माइंड में बैठने देना। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो ट्रेड शो होगी सेंटेंस में टेंसेस के साथ, टाइम के हिसाब से, एक्शन की, फिनिश्ड एक्शन। अब इसमें भी क्या दिक्कत होती है लोगों को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, हिंदी करने की पता नहीं क्यों जल्दी होती है लोगों को एकेडमिकली भी। छोटे बच्चे तो चलो छोटे, अब वो छोटे बच्चे भी कई इतने छोटे नहीं रहे, उनको भी मालूम है कि इस सेंटेंस में अगर ये शो हो रहा है, ये यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, ये नहीं कि ये यूज करना है। ऑप्शंस आपके नो डाउट हेल्प करेंगी, तो 3 ऑप्शन रॉन्ग वाली पिक ही क्यों करनी जब आपको पता चल गया कि एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आपने आइडिया ले लिया, क्योंकि एग्जामिनर आपकी हेल्प कर रहा है, गॉड आपकी हेल्प कर रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपने उन चीजों को सीख लिया विद देयर हाउस एंड वाइस। समटाइम्स हाउस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वाइस। तो अगर हम चलते हैं परफेक्ट टेंस में नेक्स्ट में, तो आप देखें परफेक्ट टेंसेस फिनिश्ड एक्शन को शो करेंगे। फिनिश्ड एक्शन वो है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बताना चाहता है सब्जेक्ट कि ये एक्शन फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। आई हैव टॉट यू फॉर 2 hours टुडे फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें देख रहे हैं टाइम भी आ रहा है, टाइम का भी एक NB करके पॉइंट, जो लैटिन एक्सप्रेशन है नोटा बेने, नोटा प्लीज नोट, बेने वेल। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि जब हम सिंपल ये फ्यूचर पास्ट में जाते हैं, पहले पास्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट टेंस को लोग ग्रामेटिकली बहुत भयंकर तरीके से यूज करते हैं, एग्जामिनर सेंटेंस से बनाता है। सिंपल पास्ट कोई पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। मैंने लेटर कल पोस्ट कर दिया था, आई हैड पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, बहुत बढ़िया जी, बड़ा सिंपल बना दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? पहली बात, पास्ट परफेक्ट एक एक्शन के लिए यूज नहीं होगा, भले ही क्लॉज दिया हो, एडवर्ब दिया हो, सिंगल, ऑलरेडी, कुछ भी, या फिर आपको कोई ऐसी इंडिकेशन दे रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट उन सेंटेंसेस जिनमें, उन सेंटेंसेस में जिनमें 2 एक्शंस हैं पास्ट के,
जो एक्शन पहले फिनिश हुआ है। एक सेंटेंस सुना होगा कई टीचर से, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी, लोग कहते हैं, जा चुकी थी। आई से गाड़ी आ चुकी थी। तभी तो गए ना स्टेशन पे, आपने आगे की जर्नी भी एंजॉय करनी है। तो गाड़ी पहले आ चुकी थी तो पास पर वहां लगे, भले इस क्लॉज को एग्जामिनर जानबूझ के पहले लगा दे या बाद में लगा दे। तो द ट्रेन हैड अराइव्ड या द ट्रेन हैड रीच्ड, अराइव करेंगे तो एट प्रपोजिशन आएगी, रीच करेंगे तो प्रपोजिशन नहीं आएगी। द ट्रेन हैड अराइव्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो जब आप दो एक्शन को देखते हो, पहले ये देखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है, वेदर दैट इज देयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस और द सेकंड क्लॉज। पहला एक्शन कौन सा है। डॉक्टर के आने से पहले कोई ओल्ड एज्ड पेशेंट जो था वो चला गया भगवान के पास। वो डॉक्टर कई बार आ चुका है किताबों में, कई टीचर्स ने बड़ी बार बुलाया, लेकिन पेपर में दोनों जगह लोग हैड लगाते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, पहले पेशेंट गया है, डॉक्टर बाद में आया। तो द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो जब आप पास्ट परफेक्ट में कंप्लीटेड सेंटेंस शो करें तो पास्ट परफेक्ट माइंड में रखना, एक एक्शन के लिए नहीं यूज होगा। टू एक्शंस आर देयर, जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है क्लियरली। एग्जाम में बड़े सारे सेंटेंस मिलेंगे, आपको बस देखने से पता चल जाए क्या है, क्योंकि आप आपको टेंस के नाम से नहीं, उस नाम के जरिए जो हेल्प मिल रही है भी उसमें क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस तो आप बना रहे हैं उस टाइम और उस ट्रेट में। अगर परफेक्ट है तो कंप्लीटेड एक्शन है। फिर टाइम दिया तो फॉर और सिंस, जिसको सीखने के लिए कुछ सेकंड्स की जरूरत है। इंट्रोडक्टरी सेशन में अगर आपने देखा हो तो फिर ध्यान रखेंगे, परफेक्ट में टाइम दिया, परफेक्ट कंटिन्यूस बिना उसके बन नहीं सकता। सिंस या फॉर प्रपोजिशन, सिंस में एस लगा हुआ है, स्टार्टिंग टाइम एस से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन दिया हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे, नहीं तो फॉर। बुक्स में लिखा है, टीचर्स बताते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कई बार बंदा कह देता है भी 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, ये फिक्स टाइम तो है ना। कई बार कहते हैं फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज होगा, स्टार्टिंग तो नहीं दी हुई ना। अगर कोई बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा है तो उसकी 2 घंटे मिन्नत बेकार नहीं करनी है ना, कि टेंस थोड़ी गलत बना देना है। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, अपने आप सही सेंटेंस मुंह से निकलना चाहिए, बात वो है। तो इन चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल सीख के चलेंगे, ताकि मिस्टेक्स, एरर्स, ब्लंडर्स से हमारा कभी आमना सामना ना हो। तो परफेक्ट टेंसेस फिनिश्ड एक्शन को शो करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, हैज, हैव, हेल्पिंग, अब है, थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग ऑफ के नहीं आती। एग्जाम्स में फिलअप्स में आप देखें थर्ड फॉर्म लगी है, जैसे क्लोज पैसेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, तो अगर हेल्पिंग अब नहीं दिया तो वो परफेक्ट टेंस ही नहीं है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, तो आप देखेंगे कि वो हेल्पिंग हो के साथ आई। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ आ रही है, पास्ट में हैड के साथ, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म। ये आपके परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पीडीएफ की वेट करिएगा, दिल से उसका अटेम्प्ट करिएगा। ये नहीं कि गलती नहीं करना, नहीं होगी, पढ़ लेना एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो, रिवाइज कर लेना। इसके बाद है आपका लास्ट लेग ऑफ एक्शन शोइंग टेंसेस। आप देख रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पहली बात जो इंटरेस्टिंग तरीके से काफी बच्चों को मालूम है कि अगर एक सेंटेंस एक्शन एक है, पार्शली फिनिश्ड है, पार्शली कंटिन्यूस है, उसको शो कर रहा है, तो वो एक एक्शन
देखा जाए तो इस टेंस के नाम को ही एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं साइंटिफिकली। द नेम ऑफ द टेंस इज परफेक्ट कंटिन्यूस। एक्शन परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। मैं अगर 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 4 decades, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट मोर देन 4 decades। अभी भी आप जैसे बच्चों को ग्रामेटिकल मास्टरी के लिए पढ़ाना है तो स्टिल दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। नो डाउट द एक्शन स्टार्टेड 40 years ago, but it is still going on. Perfect continuous. Partially finished, partially continuous. जब ये चीज आपको समझ आ गई, एग्जाम में आपको एग्जामिनर की हेल्प अपने आप नजर आनी चाहिए। आप कहीं पर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सुबह से ही ये कार्य कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग इटसेल्फ। छोटी सी बात, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक है, नेचर पे डिपेंड है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आएंगे आगे न्यू पैटर्न में, कि अगर सब्जेक्ट के साथ ही लगा तो एम्फेटिक, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं शो करा। आई माई सेल्फ टॉट यू दिस पॉइंट, यहाँ पर माई सेल्फ वाला एम्फेटिक प्रोनाउन है। जो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसका एम्फेसिस ड्रॉ करने के लिए, शो करने के लिए माई सेल्फ लगा है। समटाइम ये भी हो सकता था आई टॉट दिस पॉइंट टू यू माई सेल्फ। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है कि मैंने आपको ये पॉइंट खुद बताया था, आपने पूछा नहीं था। अब है कि मैंने ही बताया तो आपको बता रहा हूँ कि आपने पक्का कर लिया तो हो गया। आपने ही पक्का कर लिया तो यू योर सेल्फ या योर सेल्व्स अगर बहुत सारे, क्योंकि यू एज सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए पर्सन प्रोनाउन का काम करता है। हेल्पिंग हमेशा प्लूरल आएगा, बट व्हेन इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ आइदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, देन द केस चेंजेस, द ट्रीटमेंट, ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट चेंजेस। आपके सामने एक बंदा है, उसको आप कहना चाहते हो एम्फेटिकली या रिफ्लेक्शन के हिसाब से, तो योर सेल्फ माइंड इट। ये पॉइंट सारे आपको मिलेंगे पीडीएफ में। योर सेल्व्स जब एक से ज्यादा है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पॉइंट अलग से भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम में मिलेंगे, फिलअप्स में मिलेंगे, आपको कॉमन एरर में मिलेंगे। कॉमन एरर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई, एक तो टाइम नहीं लगता, बच्चे बड़े खुशी हो जाते, 10 एरर्स आई जी 2-3 मिनट्स में हो गई। ये नहीं कि 2-3 मिनट में कर ली, हो गई विद रीजंस कि ये रॉन्ग है ये राइट। किस पार्ट में, एग्जाम में तो कई बार ये भी हेल्प मिल जाती है, इस पार्ट देखना, रिकॉग्नाइज करना कौन सा। अब तो एग्जाम में आप देखते हैं कॉमन एरर्स का सेंटेंस दे दिया, पार्ट्स बना, नीचे पार्ट्स को जंबल करके दे, उसमें भी एग्जामिनर थोड़ा सा आपके माइंड से, आपके दिल से, आपके जज्बात से खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप पहले ही कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं, स्ट्रांगली जा रहे हैं एग्जाम को देख, क्वेश्चन आपने देखा है ये इसमें, और नीचे देखना है कि जो लास्ट पॉइंट है वो हो सकता है ए वाले ऑप्शन में हो, तो योर आंसर इज ए टू दैट क्वेश्चन। तो टेंसेस के ऊपर मास्टरी करते हुए आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी आ रहा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। हेल्पिंग ऑफ का ध्यान आप रख ही रहे हैं कि हैज बिन हैव बिन आ रहा है, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म एक्शन उस हद तक खत्म हो गया। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव टॉट यू फॉर 2 hours, लेकिन एक्शन आगे भी चल रहा है, तो आई एम कंटिन्यूइंग टू टीच यू। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours सिंस 1 o'clock। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपको ये पता है क्या आ रहा है। और फिर देखिए मैंने सिर्फ एस को अंडरलाइन किया है। स्टार्टिंग टाइम में एस आता है, सिंस में एस आता है, तो सिंस तब जब स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है। आवर कंट्री विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग ओलंपिक्स फॉर सम मंथ्स। अब आपको मालूम है ओलंपिक्स के लिए कभी इंडिया भी होस्ट करेगा तो करेगा, कॉमनवेल्थ तो होस्ट करेगा 2030 में। जीके में एक मार्क और मिल जाएगा, उसका मस्कट आपको क्लियर हो जाता है, कई चीजें ऐसी क्लियर हो जाती है, आपने पढ़ा और आपके माइंड में छप गया। क्योंकि आपका उस समय पढ़ते समय एक ऑरा ऐसा बना होता है, एक एटमॉस्फेयर ऐसा, हैबिटेट ऐसा बना होता है कि आपको और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं टू बी द बेस्ट। डोंट नो कि बेस्ट वेट आपका इंतजार करिए, आप उसका वेट नहीं कर रहे, पहले डिजर्व देन डिजायर। तो टेंसेस में टेक्निकली इन चीजों को देखिएगा,
उसके बाद जब इसकी PDF मिलेगी, स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहाँ से शुरू है। स्ट्रक्चर्स भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। एक सेंटेंस देखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आप भूल नहीं सकते, तो उनको भी आप देख के चलेंगे कि नो डाउट भारत रत्न मिला है, सिंपल प्रेजेंट में भी आएगा, जीके में भी आपको शुभांशु शुक्ला जी 1 मार्क दिलाएंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो टेंसेस भी हम देखेंगे, ये आपके पेपर में आएगा। तो स्ट्रक्चर भी देखें, सेंटेंसेस देखेंगे, ताकि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मटेरियल ऐसा करके चलना है कि सारे इफ्स एंड बट्स आपके माइंड से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। सो वेट करिएगा नेक्स्ट सेशन की। मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सक्सेसफुल एंड बी द बेस्ट। थैंक यू।